Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 13th December 2021 and I am teaching you chapter number 19 towards independence. Okay, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video we discussed the SALT law and civil disobedience movement. Okay, so at that time what happened, the British people जो थे ब्रिटिश पीपल दे उन्होंने क्या लॉ बनाया था कि अब जो इंडियंस हैं दे विल नॉट मेक द साल्ट. ठीक है, अब वो अपने से साल्ट भी नहीं बना सकते. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, द साल्ट विच द इंडियन आर बाइंग, दैट साल्ट they are buying from the British at a high cost. Okay, so Gandhi ji thought that like a air water, salt is also very essential for the human beings. Without salt you cannot cook the food. So from Sabarmati in Ahmedabad he started a this is also known as a Dandi March because it is the name of a village and it covered a distance of 300 kilometer and it took 3 weeks to Gandhiji because they and in this movement many peoples joined this Andolan, that is the Dandi March. Okay, and Gandhiji broke the law. Okay, that law which is made by the British people at that time. So what happened, many people are arrested and sent to the jail. So this led to the civil disobedience movement. तो यहाँ पे जो according to Gandhi ji always follow the path of a non-violence and many people are arrested and sent to the jail. In this manner Gandhi ji break the law which is made by the British people at that time. Okay, now other revolutionary leaders. So some of the revolutionary leaders, that is the Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismillah. So they came forward to fight the freedoms. So these are revolutionary leaders because they don't believe, because they believe that non-violence could not win us freedom. So these are some of the revolutionary leaders: Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismillah. So they come forward for the freedom of our country from the British rule. And what they believe that non-violence
is not the way by which they get the freedom from the British rule. Okay, and at the same time in 1942, in 1943 you can say, Subhash Chandra Bose started and formed the Indian National Army in foreign country. Okay, and started the freedom struggle from there. So Subhash Chandra Bose, and Subhash Chandra Bose is also known as Netaji in India, and he started a Indian army, and the name is given that Jai Hind. Okay, so Subhash Chandra Bose, Subhash Chandra Bose. Okay, in 1943, in 1943, Subhash Chandra Bose started and formed the Indian National Army in a foreign country, that is in Japan. Okay, and started the freedom struggle from there, and started the freedom struggle from there. Okay, so Netaji give the famous slogan, that is the Jai Hind. And out of these revolutionary leaders, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है, इन तीनों लीडर्स को ब्रिटिश रूल में क्या फांसी दे दी गई थी. ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों लीडर्स को एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, सो दे हैंग देम. ठीक है, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी. ठीक, अब देखो नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट in 1942, next movement which is launched by Mahatma Gandhi, that is the Quit India movement. Okay, so in 1942 Gandhi ji launched the Quit India movement demanding complete freedom for the India. ठीक है, so at this time in 1942, because इस समय क्या बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1939 to 1945 for 6 years. ओके, ईयर्स शॉर्टकट में लिखा है, ईयर YEARS होता है, YARS भी लिखते हैं. ठीक है, इन 1939 to 1945 6 years आपका क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था. ओके, सो इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन द इंडियन, व्हाट डू द इंडियन वांटेड, इंडियन क्या चाहते थे कि उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि दे विल सपोर्ट द ब्रिटिश इन द फाइट, बट आफ्टर दैट यू गिव अस द इंडिपेंडेंस, make our country free from your rule. But again the British peoples are very clever, they don't agree for this. ठीक है, ब्रिटिश पीपल जो थे वो बड़े ही क्लेवर थे. ठीक है, इंडियंस ने सोचा कि देखो ब्रिटिश की तो लड़ाई चल रही है इस समय, ठीक है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि ब्रिटिश की फाइट चल रही है तो हम ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं उस फाइट में. और ब्रिटिश पीपल के सामने एक प्रपोजल रखा जैसे कांग्रेस के लीडर्स ने कि आफ्टर द फाइट नाउ यू विल मेक आवर कंट्री फ्री सो दैट इंडिया बिकम ए get the independence. But again the British people are not ready for that. So that is the reason the in 1942 Congress leaders under the Mahatma Gandhi, they are ready to act a new movement, and this movement is known as Quit India movement, and it is launched in 1942 by Mahatma Gandhi. ठीक है, now what is the demand in this movement? The demand in this movement is that complete freedom of India. Okay, what is the demand of Quit India movement? Is the complete freedom of India. Okay, this is the demand, complete freedom of India. He asked people to do or die. These words are spoken by whom? Gandhi ji. Okay, Gandhi ji
these words are given by Gandhi ji. He asked people to do or die. Is it means करो या मरो. ठीक है. मतलब गांधी जी, वैसे तो गांधी जी टोटली नॉन वायलेंस के फेवर में थे, लेकिन अब गांधी जी ने भी 1942 में ये जो दे दिया कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंडिया, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया, डू और डाई, करो या मरो. ठीक है, चाहे जो हो जाए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट चाहे जो हो जाए, हमें मरना भी पड़े, हमें बलिदान भी देना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, हम देश के लिए देंगे, लेकिन हम ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे. आई बात समझ में? सो these are the words of Mahatma Gandhi, that is do or die, करो या मरो, whatever we have to do sacrifice for our country, अपने कंट्री के लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी चाहे हो जाए, हम we will get the freedom from the British rule. यहाँ से इंडियंस ने दिमाग में बना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश से अपनी कंट्री की फ्रीडम लेके ही रहेंगे. ठीक है. सो एज यू नो, इससे पहले भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी. गांधी जी ने बड़े बड़े ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, साल्ट ला डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद अब गांधी जी ने क्या किया, लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट. सो इन द एवरी मूवमेंट्स आपने देखा कि ब्रिटिश पीपल्स ने इंडियंस को कंट्रोल करने में और इंडियंस को प्रोटेस्ट करने में, मतलब इंडियंस जब विरोध करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लोग क्या करते थे, जेलों में डाल दिया करते थे. दे पुट द पीपल इन द प्रिजन्स. ठीक है, जेल में डाल दिया करते थे. ठीक है, तो सेम थिंग हैपन हियर आल्सो. लेकिन इस समय क्या है, सेम कंडीशन इज एट दिस टाइम आल्सो. सो टू कंट्रोल दिस नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश पीपल ने सबसे पहले क्या किया, दे मैनी लीडर्स, जो भी सीनियर लीडर्स थे, जिन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, तो मैनी सीनियर लीडर्स आर अरेस्टेड एंड दे आर मैनी लीडर्स वर जेल्ड. इवन महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था. इज इट क्लियर? सो टू कंट्रोल दिस मूवमेंट मैनी लीडर्स वर जेल्ड. इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, ब्रिटिश पीपल्स ने क्या किया, they put many leaders in the jail, like मौलाना आजाद, खान अब्दुल जाफर, जाफर खान, and इंदिरा गांधी were some of the leaders. ओके, नाउ अब क्या किया, इवन महात्मा, इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक, इवन महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया था इंग्लिश पीपल में. ओके, सो देखो, एक ग्रेट लीडर वो होता है जब वो खुद होता है, तो जितने भी एफर्ट्स करता है वो खुद करता है, एफर्ट्स गाइड करता है, अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है, गाइड करता है. लेकिन अब जो यहाँ जो गांधी जी ने बोला था ना, डू और डाई, करो या मरो, अब यहाँ पे तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया ना, ही इज आल्सो पुट इनटू द जेल. सो व्हाट इज ब्रिटिश पीपल थॉट दैट, ब्रिटिश पीपल्स को ऐसा लगा कि अब गांधी जी भी जेल में आ गए हैं और भी बहुत मेन लीडर्स को जेल में कर दिया, तो दे आर एबल टू कंट्रोल दिस आंदोलन. बट ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ. अब लोगों के मन में ये बात एकदम आ गई थी, they are ready to sacrifice their life, but only one thing they want, that they want the freedom from the British rule. So the आंदोलन is continue, आंदोलन कंटिन्यू होता रहा. जैसे कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ा, साल्ट एक्ट में पढ़ा,
जितने भी इससे पहले हुए, फिर हमने वो वहाँ पे पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। सारी जगह हमने क्या पढ़ा था, 3-4 बातें बिल्कुल कॉमन थी। हर जगह क्या किया गया, बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड हुआ एंड स्पेशली द स्टूडेंट स्टॉप अटेंडिंग द स्कूल एंड कॉलेजेस। और सब सारे जितने भी जो मूवमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट्स ने, जो यूथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो इन द सेम मैनर जहाँ भी ये हुआ, बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। सो इवन द आंदोलन वाज नॉट स्टॉप्ड एंड मेनी youth they stop attending the school and colleges and they also participate in this आंदोलन, ठीक है। सो these in this manner ये आंदोलन क्या कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश पीपल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश पीपल्स के ऊपर प्रेशर इसलिए भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो 1939 से 1945 तक चलता रहा। तो ऐसे में ब्रिटिश पीपल्स दे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था, ठीक है। 6 साल हो गए थे लड़ाई होते होते, ठीक है। तो उन पे भी प्रेशर था, ठीक है। अब उन्हें लग रहा था कि क्योंकि इंडिया के लोग, मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंडियंस, जो हम इंडिया के लोग थे, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और जो ब्रिटिश थे वो बहुत थोड़े से लोग थे हमारी कंट्री में, ठीक है। ये तो जो गांधी जी ने चलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्टॉप वर्किंग फॉर देम, वी विल नॉट कॉपरेट देम, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज 200 साल हमारी कंट्री में इसीलिए भी आ गए क्योंकि उनके हर काम में हम उनका क्या कर रहे थे, कॉपरेट कर रहे थे, उनके साथ उनका सहयोग कर रहे थे, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न। अब देखो ब्रिटिश पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एक तो लड़ाई चल रही थी, मनी की भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और एट दैट टाइम ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड और उनके कारण क्या है, चीज़ों का रेट इतना, जो कि बेटा लड़ाई लगती है तो उसमें बहुत युद्ध में पैसा खर्चा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न ब्रिटिश इंडिया में चीज़ों का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया था कि इंडियंस तो खुद ही ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, दे डोंट हैव सो मच मनी टू बाई द थिंग्स। तो आगे आगे लोग बहुत एंगर थे, भाई चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी, तो वो तो उनके बस की बात नहीं थी। तो लोग तो वैसे ही ब्रिटिश लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, दे आर वेरी एंगर, सो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। और ब्रिटिश लोगों ने भी फिर भी ये क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो इन्होंने जगह जगह पे फायरिंग, बहुत नॉन वायलेंस भी हुआ, बहुत से लोगों को मारा। और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि मैक्सिमम जितने भी पीपल्स थे, वो जो मैंने बोला ना कि बहुत से लोग इस आंदोलन में दे पार्टिसिपेटेड इन आंदोलन, मैक्सिमम को तो इन्होंने जेलों में डाल दिया, ठीक है। और कई जगह नॉन वायलेंस की घटनाएं होती रही, कई जगह फायरिंग भी हुई, ठीक है। मैनी इंडियंस डाई ड्यू टू द फायरिंग डन बाय द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। और अब क्या हुआ यहाँ पे चेंजेस, अब ब्रिटिश और ज़्यादा परेशान इसलिए हो गए कि अब इंडियंस ने डिसाइड कर लिया था कि वे में इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। तो बहुत से ब्रिटिश में जो इंडियंस जो थे ब्रिटिश पुलिस फोर्स में, दे लेफ्ट द जॉब। जो उस समय अखबारें ये सब चलती थी, जो कारखाने चलते थे, ब्रिटिश ने सारे इंडियन ट्रेडर्स के काम बंद करके सब कुछ अपने हैंड में ले लिया था। तो वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, सब बंद कर दिया लोगों ने, सब बंद, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था मरना तो है ही। क्योंकि मैंने बताया ना, गांधी जी ने बोला डू और डाई, करो या मरो। तो अब लोगों ने ये चीज दिमाग में बना ली थी, डिसाइड कर लिया था कि अगर हम जिंदा भी रहेंगे और ब्रिटिश का ही रूल रहेगा तो वो मरने की तरह है। तो अब लोगों ने मन बना लिया था कि नहीं, अब कुछ नहीं, मर जाएंगे लेकिन वी विल नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल, हम ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जितने भी जगह इंडियंस वर्क करते थे, सारी चीजें बंद होने लगी इंडिया में। क्यों? लोगों ने सोच लिया मर जाएंगे लेकिन वी विल नॉट, नाउ वी विल नॉट वर्क फॉर द ब्रिटिश पीपल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर on the British government to control the Indians at that time. Okay, so finally the British finally bow before the Indians. अब जब कुछ भी उनके पास, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, गोलियां भी चला के देख ली, हर ढंग से कंट्रोल करना चाहा। ऐसा नहीं है, गांधी जी भले उन्होंने बोला कि सिर्फ नॉन वायलेंस होगा, लेकिन गांधी जी तो जेल में थे। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह इंडियंस ने भी वायलेंस करना स्टार्ट किया। तो अब जो ब्रिटिश पीपल थे, जो ब्रिटिश, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन जो ब्रिटिश पुलिस फोर्स में थे,
दे लेफ्ट द जॉब। अब जब उन्होंने जॉब लेफ्ट कर दिया तो अब ब्रिटिश भी डरे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो फाइनली दे बो बिफोर द इंडियंस। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।